यहाँ पे भी एक ऊपर होगा, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एक लैटिस पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के साथ यहाँ पे भी कुछ होगा, ऊपर भी 2 होंगे, नीचे भी 2 होंगे, और इस तरीके से हमारे पास क्या मिलेंगे, लैटिस पॉइंट। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे जो एक वॉइड बना वो कैसा वॉइड है बोलो, देखो 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, अभी समझा था हमने पैकिंग में। तो ये कैसा वॉइड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Hey all, welcome back on Chemical Serendipity. So we had done the question portion of whatever the topic we have already covered. So today I'm going to start with the new topic, that is the application of crystal field stabilization energy. And the first application of crystal field stabilization energy is the site preference of the metal ions in a crystalline solid. Alright, so we are going to do the applications of crystal field stabilization energy, and the number 1 is your I would say site preference of metal ions in a crystalline solid. So what are these crystalline solids? So as you know that we have 2 type of ionic solid. One is the crystalline solid, another is the amorphous solid. So we are going to cover the different type of solids in your solid state also. Alright. So one of the type of this crystalline, so crystalline solids where you have a well defined, we can say, arrangement of ions in 3 dimensions. There is one type of crystalline solid called spinels, and these are also called mixed metal oxides. Why mixed metal oxides? देखेंगे। देखो इसका जनरल फॉर्मूला होता है Ab2O4। तो देखो नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, O2 नेगेटिव, ऑक्साइड है ना, सो -8, 4 to 8 -8। तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, +8। सो उसके लिए क्या होगा, A किस में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दोनों B किस में होंगे, B+3, और दूसरा भी किस में होना चाहिए, B+3। सो वी हैव अ डाइवेलेंट मेटल आयन ऑल्सो, एंड वी हैव ट्राइवेलेंट मेटल ऑल्सो इन योर स्पाइनल. ऑलराइट, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड्स. तो देखेंगे डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट मेटल आयंस पीरियोडिक टेबल में कहाँ बिलोंग करते हैं. सो यहाँ पे स्पाइनल्स बनाने के लिए जो ये डाइवेलेंट मेटल आयन है बेसिकली ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 2A metals को, which is nothing but which is your beryllium family. All right, and they belongs to your transition metal too. So example लिख लेंगे. For example, your magnesium, chromium, right? Your iron, nickel, zinc, etc. in +2 oxidation state. और जो आपके trivalent metal ions हैं, they belongs to group 3A, which is nothing but your boron family. Okay, and also transition metals. So examples are aluminium, gallium, chromium, titanium, vanadium, etc. in +3 oxidation state. And this in this particular spinel is your oxide, but the general formula is AB2X4, where X can be oxygen, sulfur, selenium, etc. So this is the general information about these spinels. So what is our application? Application is that CFSE is going to help us in order to find site preference of metal ion in crystalline solid. So what is site preference? So in order to find out what it meant by site preference, let's find out the packing of this particular. Let's say you have AB2O4, okay, and you have a packing, a close packing of this oxide. So मान के चलो कि ऐसा कुछ लेयरिंग है, ये आपके ऑक्साइड है जो ऐसे कुछ अरेंजमेंट जिनका है. ओके, and this is the second layer of these oxide. So this is first layer of oxide, okay, and consider that this is above
is the second layer of oxides. ऐसा कुछ है, ठीक है. तो अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को जूम इन करोगे इसको, तो कैसा दिखेगा? देखो कैसे दिखेगा बोलो. अगर आप इसको साइड व्यू देखो, इस लेयर का आप साइड व्यू देखो, साइड से देखो, तो कैसे दिखेगा? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक ऊपर है, सच दैट इनके बीच में एक स्पेस है. ऐसा कुछ दिखेगा साइड से कि तीन आपके हैं ऐसे, ठीक है, ऑक्साइड, और एक ऊपर है, एक ये तीन नीचे वाले और ये एक ऊपर वाला. तो बीच में ये जो स्पेस बच रहा है, ये स्पेस, ये क्या हुआ? खाली जगह, जिसको आप क्या बोल देते हो? वॉइड. और ये वॉइड किस शेप का है? ये वॉइड 4 लैटिस पॉइंट से क्या है? अटैच है. तो इसको मैं क्या टेट्राहेड्रल वॉइड बोल दूं? ऐसे ही तो देखा था ना, टेट्राहेड्रल शेप में ही तो हो गया. तो इसको क्या बोल देते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड, जो इस ऑक्साइड लेयर के बीच में है. सो दैट मीन्स either your bivalent ion metal ion or your trivalent metal ion is going to come and sit inside this cavity, isn't it? So this is one of the site, that is the tetrahedral void. Now let's find out और कोई साइट बन सकती है, तो इसी को ही देखेंगे. ऐसे देखो लेयर को. So this is, let us consider is your first layer. So this is your first layer of oxide 2 डायमेंशन में, ठीक है. अभी इसके ऊपर जो ऑक्साइड है का लेयर वो कुछ ऐसा है. सो इसको थोड़ा और कंटिन्यूएशन में लेके आओ. तो इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर कुछ ऐसे है. समझ में आ रहा है? सो दिस इज दिस येलो वन, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ ऑक्साइड. ठीक बात. अब इस पोर्शन को, जहाँ पे 3 आपके ऑक्साइड नीचे हैं और 3 उसके ऊपर है, इस पोर्शन को अगर जूम इन करके देखो, इस पोर्शन को जूम इन करके देखो कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है ना. मान लो एक, ये दूसरा और ये तीसरा ऊपर वाली लेयर. तो नीचे वाली लेयर कैसे है? 1 2 3. ये मैंने इसकी क्या लेके चली हूँ मैं? सेंटर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया, तो ऐसे देखो. तो कैसे है? देखो, जो तो आपके 1 2 3 नीचे वाली फर्स्ट लेयर के 1 2 3 वो कंसीडर कर लिए, और ऊपर वाली लेयर के कैसे है? 1 2 3 ऐसे 1 2 3. तो बीच में अगेन आप साइड से देखोगे तो बीच में क्या होगा? वॉइड होगा. और जिसके क्रिस्टल लैटिस कितने हैं? 6, क्योंकि ये 4 और ये 5 6. तो इस वॉइड को क्या बोल दे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल दे. क्योंकि ये वॉइड कैसा दिखेगा? देखो ये वॉइड कुछ ऐसा दिखेगा ना. 1 2 3 1 2 3, और जो बीच में वॉइड है वो ऐसे है. तो इस वॉइड को क्या बोल दें? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो एनायंस की पैकिंग में 2 तरह की साइट अवेलेबल है, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड. समझ में आ गई ये बात क्या है? तो हमें CFSE हेल्प करेगा ये बताने में कि कौन सा मेटल आयन किस साइट को प्रेफर करेगा. समझ में आ रही है ये बात? देखो, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज as the metal ion is going to change its site, all right, from tetrahedral to octahedral, there will be huge changes in your various properties of these spinels. For example, the color will be different, all right, and these spinels are nothing but the beautiful gems, beautiful stones that some of you guys have on your ring, on your finger ring, all right. So these are basically those beautiful stones, all right. So their color is due to their the position of the different metal ions in this different site of the oxide layers, all right. So this is what we are going to discuss, but let's
understand nicely about these tetrahedral void and octahedral void, that what type of the close packing of oxides will be there, and how many number of tetrahedral voids and octahedral voids are available for these divalent and trivalent metal ions. So this is the unit cell I am considering. What is unit cell? That smallest three-dimensional unit that repeats again and again to form the space lattice. All right, so in this unit cell we have the packing of your oxide. All right, so we have oxides on the corner, and also we have oxides we can say on the center of each phase. So this is the top, this is bottom, these are the side faces, this is your front, this is your back. तो देखो इसको क्या बोल देंगे, हर एक कॉर्नर में है ऑक्साइड, ऑलराइट, और हर एक फेस में है, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम एंड साइड, सबके फेस के सेंटर में भी है, तो इसको क्या बोल देंगे, फेस FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, राइट, ऐसा है। अब हमें देखना है कि तुम्हारे बायवेलेंट और ट्राइवेलेंट जो मेटल आयंस है वो कहाँ कहाँ होंगे, और यहाँ पे हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अवेलेबल फॉर दीज कैटायंस। ठीक बात। अब देखो सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो इस पार्ट को ज़रा तुम, ये जो फर्स्ट क्यूब तुम्हें दिख रहा है ये वाला, इसको ज़रा लेंगे, इसको हम देखेंगे तो ये कैसा है, देखो कहाँ कहाँ पर है इसमें ऑक्साइड्स, देखो यहाँ पर है और कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, आगे यहाँ पे नहीं है, नीचे यहाँ पर है, और कहाँ पर है, पीछे यहाँ पर है। तो ध्यान से देखो ज़रा इसको, ये क्या है, ये 3 है और ये ऊपर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जो एक खाली जगह बचेगी वो कैसा वॉइड होगा, दैट विल बी अ टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ गई बात, ये 3 है उसके ऊपर, ये 3 एक लेयर में है और ये उसके ऊपर है, तो बीच का जो स्पेस बचेगा, ठीक है। अब ये इतने दूर नहीं है, इतना दूर मत सोच लेना कि इतने दूर है कोई बॉन्ड है, नो, ये पैकिंग है। तो 3 अगर एक प्लेन में पैक्ड होंगे, 3 एक लेयर में, एक उसके ऊपर रख दिया, तो बीच में जो खाली जगह होगी उसकी कैसी वी कैन से कैसा होगा उसका शेप, टेट्राहेड्रल है ना, क्योंकि वो 4 लैटिस पॉइंट से घिरा हुआ है। तो इसीलिए इस वॉइड को, इस खाली जगह को क्या बोल दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बोलो कितने होंगे। अब ऐसे ही क्यूब इसमें कितने होंगे, 1, ये क्या होगा 2, 3, 4, यहाँ पे नीचे से देख लो चाहे ऊपर से देख लो, 5, 6, 7, 8, तो कितने होंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो टोटल कितने हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देख लो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ज़रा इसको कंसीडर करो। इसको, इस पूरे का जूम इन लेंगे, इस पूरे का, तो कैसा होगा देखो, ऐसे है। कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, नेक्स्ट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे सेंटर पे है यहाँ पर,
और एक यहाँ पर नीचे है, बस देखो ये वाली साइट है, इसको देखो, जैसे एक ये वाला लैटिस पॉइंट है वैसे ही साथ में एक होगा, क्योंकि देखो ये यूनिट सेल है, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होके स्पेस लैटिस बना रहा है, तो ऐसा ही एक यूनिट सेल यहाँ पे भी होगा, तो वहाँ पे भी एक क्या मिलेगा आपको, लैटिस पॉइंट मिलेगा, एकदम उसके अपोजिट। अब जैसे यहाँ पे नीचे है एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, वैसे ही क्या है यहाँ पे भी एक ऊपर होगा, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एक लैटिस पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के साथ यहाँ पे भी कुछ होगा, ऊपर भी दो होंगे, नीचे भी दो होंगे, और इस तरीके से हमारे पास क्या मिलेंगे, लैटिस पॉइंट। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे जो एक वॉइड बना वो कैसा वॉइड है बोलो, देखो 3 ऐसे हैं 3 ऐसे हैं, अभी समझा था हमने पैकिंग में, तो ये कैसा वॉइड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नंबर देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कितने होंगे, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें यहाँ पे दिखा, कहाँ पे दिखा, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पर, ठीक बात। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है अपने लैटिस पॉइंट को, तो ये शेयरिंग में है। कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में है, ध्यान से देखो, ये एक तो ये हो गया, एक यहाँ पे होगा 2, एक यहाँ पे होगा इसके ऊपर 3, एक उसके ऊपर होगा 4, तो कितने यूनिट सेल के साथ वो एक कितने यूनिट सेल के साथ कर रहा है शेयर, 4 के साथ। 1 ये हो गया, 1 इसी के साथ यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो दूसरा यहाँ पे हो गया, एक लैटिस पॉइंट ऊपर भी है तो वो भी 2 शेयर कर रहा है, एक जो इसके ऊपर होगा और एक जो उसके साथ में होगा, तो 4 यूनिट सेल जो है वो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या कर रहे हैं, शेयर, तो 1/4। और ऐसे एक यूनिट सेल में कितने होंगे ऐसे, तो देखो ये यहाँ पर बन रहा है, समझ में आ रही है बात, यहाँ पर, तो ऐसे और कितने पॉइंट हो गए, 1 2, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 3, यहाँ पे भी 4, नीचे देखो 5 6 7 8, साइड में देखो 9 10 11 12, दोबारा बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक यूनिट सेल में ऐसे ही कितने बनेंगे, 12। लेकिन सब के सब में जो एक वाइड है वो कितने यूनिट सेल शेयर करेंगे, सब में 4, तो टोटल कितने हो गए भाई, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए। और कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है क्या, एक दिख रहा है, सेंटर में देखो, अगर ये सेंटर है, खाली जगह है ना सेंटर, लेकिन 1 2 3 4 और एक कहाँ पे है अबव, एक कहाँ पे है बिलो, तो सेंटर में भी हमें क्या दिख रहा है भाई, एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 1 कहाँ पे है, सेंटर में, प्लस 3 ये हमने अभी निकाले, टोटल कितने हैं, 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग ऑफ ऑक्साइड में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, वी हैव 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके, एंड वी हैव 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमें इन वॉइड्स में क्या करना है, इन मेटल्स को देखना है कि ये कहाँ पे जाएंगे। अच्छा, ये 2 तरह के वॉइड में इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होना चाहिए बोलो, अगर इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इसमें 3 मेटल है टोटल, ठीक है, उनको इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो बोलो कैसे करेंगे, कैसे होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर क्या हो 1/3 ऑफ metal ion क्या है, A B2O4। सो इफ 1/3 ऑफ मेटल आयन ऑक्यूपाई किसको, 1/3 ऑफ मेटल आयन ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 2/3 ऑफ मेटल आयन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना। अगर इनमें से एक मेटल, तीनों में से एक मेटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि कितने हैं टोटल, 8, उनको ऑक्यूपाई करे, और 2/3 मतलब 2 बच गई जो मेटल, वो क्या ऑक्यूपाई करे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तभी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। पर अब हमें देखना है
कि ये जो एक टेट्राहेड्रल में जाएगा वो आपका बाइवेलेंट होगा या फिर ट्राइवेलेंट होगा, और यही हमें कौन डायरेक्ट करेगा कि वो कौन सा होगा, आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जब हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी तो बेसिकली वो बताएगी कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। तो जिस साइट में हमारी CFSE जिस मेटल की हाई होगी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिस पर्टिकुलर साइट में ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, जिस पर्टिकुलर साइट में इन दोनों में से किसी की भी, योर डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट, उनकी CFSE जिनकी ज़्यादा होगी वो उसी पर्टिकुलर साइट में रहना पसंद करेगा। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइनल्स जो हैं वो आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।